we are starting to the next part of the strength of concrete, wherein today we will be learning about the testing of the hardened concrete. यानी कंक्रीट जब सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसके हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं फ्रॉम द स्ट्रेंथ पैरामीटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. उसकी स्ट्रेंथ एसरटेन करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट के बारे में अब अभी से हम चालू करने वाले हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्प्रेसिव टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कौन कौन सी टेस्ट करते हैं, आई विल जस्ट लिस्ट इट डाउन. इट इज द कॉम्प्रेसिव टेस्ट, accelerated compressive strength test, accelerated strength test, flexural strength, that is the bending strength, modulus of elasticity, the split tensile strength, drying shrinkage, and non-destructive testing. This much will be, as I have listed it down: compressive strength, accelerated strength, flexural strength, modulus of elasticity, split, drying shrinkage, and non-destructive test. The various tests that we carry out are being shown on this slide. Okay, no, just to get you the ideas. Now the compression testing test, okay, or the compression test of the concrete. Friends, I will again repeat that we are entering or studying today a very, very important test of concrete, which you may be knowing, but we must understand the things. Okay, the compressive strength. We all know that concrete is very good in compression as compared to the tension. Means when the compressive load is applied to the concrete is resistant to that compressive load as compared to the tensile load. टेंसाइल लोड से कंक्रीट ये कॉम्प्रेसिव लोड को ज्यादा अच्छे तरह से फेस करता है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये हरदम ज्यादा है कंपेयर्ड टू द टेंसाइल प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ हाउ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज बीइंग टेस्टेड. फॉर टेस्टिंग द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, द स्पेसिमन यानी जो हम कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए जो कंक्रीट के एक मोल्ड बनाते हैं, कंक्रीट के क्यूब बनाते हैं, वो स्पेसिमन की जनरली साइज रहती है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो द फर्स्ट you should note either in your notebook or in your mind that we test the concrete in its compressive strength by two types of the specimens. The first is the cube and the second is the cylinder. The size of the cube is 15 centimeter by 15 centimeter by 15 centimeter. If the aggregate is more than 20 mm size, and if the 10 mm 10 centimeter cube भी यूज करते हैं 10 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter, if the aggregate size is less. On what aggregate size it is best, that we will see. Also we use 15 centimeter diameter and 30 centimeter length cylinders also. Okay, how the test is being done, how these are casted, etc. I will be telling you in your latter part of this lecture. ये टेस्टिंग कब किया जाता है कंक्रीट का? कंक्रीट के क्यूब कास्ट करने के बाद में 7 दिन के बाद किया जाता है या 28 दिन के बाद किया जाता है. सो द टेस्टिंग एज इज as has been standardized is 7 days and 28 days. Why 7 days and 28 days? Because sometimes we want the strength of the concrete after 7 days for say some replacement of the formwork or for removal of the formwork. Okay, or for starting the next part of the concrete above the old concrete. Now why the 7 days? Because it has been found after studies that after 7 days the concrete attains 65 to 70% of its 28 day strength. फिर से मैं हिंदी में दोहराता हूं इसको
कि 7 दिन के बाद हम कंक्रीट के क्यूब की टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो 28 दिन में कंक्रीट की स्ट्रेंथ मिलती है उससे 7 दिन की टेस्ट ये लगभग 65 से 70% रहती है। यानी 28 दिन के बाद कंक्रीट जितना हार्ड होगा उसके 70% 70% वो 7 दिन में होता है और वो अपना खुद का जो सेल्फ वेट है, सेल्फ लोड है, वो लेने के लिए काबिल हो जाता है। ठीक है, बाकी का जो 30% जो उसकी स्ट्रेंथ है जो उसको बाद में अटेन होती है उसमें वो जो उसके ऊपर लोड्स आएंगे उसके लिए वो सेट होता है, उसके लिए वो हार्ड होता है, उसके उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो इसलिए हम 7 दिन के बाद में करते हैं। और 28 दिन के बाद में तो जैसे बताया मैंने कि आफ्टर 28 डेज द कंक्रीट गेन्स ऑलमोस्ट 95 to 99% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। ओके, आई विल रिपीट इन हिंदी कि 28 दिन के बाद में कंक्रीट की लगभग 95% जो स्ट्रेंथ है वो उसको मिल जाती है। अब ये स्ट्रेंथ क्या है कि आप फिर से रिकॉल कीजिए, हमने कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ करके एक कंसेप्ट समझ लिया था कि जिसको मैंने डिफाइन किया था कि कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट क्यूब्स और द मोल्ड्स of size 15 centimeter by 15 centimeter by 15 centimeter after 28 days of the curing। 28 दिन वो क्यूब या मोल्ड को क्यूरिंग करने के बाद में उसकी जो स्ट्रेंथ आएगी उसे हम कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो वो स्ट्रेंथ के 70% स्ट्रेंथ 70% स्ट्रेंथ द कंक्रीट गेन्स इन 7 days, therefore we find out the strength for 7 days, or we 100% find out the strength for 28 days। If we want to remove the form work earlier because the necessity of form work is there in other site, or if we want to perform the concrete on the next layer immediately, then we can test the concrete फॉर द 7 days। ठीक है, मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गया है। ये जो कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है उसका इंडियन स्टैंडर्ड है 516/1959, इट इज अपडेटेड 2020, लेकिन उसका नंबर है 516 1959 अपडेटेड अप टू 2020। इसका 5.4 जो पैरा है ये ऐसा बोलता है कि भाई कितने स्पेसिमन कंक्रीट क्यूब के टेस्ट करना चाहिए, नंबर ऑफ द स्पेसिमन्स, यानी कंक्रीट क्यूब हम क्यों टेस्ट करते हैं कि जो कंक्रीट हम साइट पे कास्ट करने वाले हैं, जो कंक्रीट हम साइट पे प्लेस करने वाले हैं, वो कंक्रीट की रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेंथ वी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, है ना। Whether the concrete that has been done by us at site is of good quality or of the bad quality can be found out with the help of the testing of the concrete with the help of this compressive strength test। तो मुझे लगता है आपके ध्यान में आ रहा है, या मैं फिर से हिंदी में आपके समझने के लिए दोहरा देता हूं कि कंक्रीट की ये जो अभी मैंने आपको बताया, कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि हम साइट के ऊपर में एज ए साइट इंजीनियर कंक्रीट जो करने वाले हैं साइट में, स्लैब में, बीम में, कॉलम में, पियर में, एबटमेंट में, रनवे के ऊपर में, रोड के ऊपर में, तो वो कंक्रीट अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं, कि बुरे क्वालिटी का है, ये कैसा पहचान करेंगे? तो उसके क्यूब हम कास्ट करेंगे, जो ये साइज के क्यूब रहते हैं, या सिलेंडर कास्ट करेंगे, और उसको 28 दिन के बाद में या 7 दिन के बाद में क्यूरिंग करने के बाद उसको, हमारे पास एक कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन है, उसमें उसको क्रश करके उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्यूब जो है दे आर द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ द कंक्रीट दैट हैज बीन कास्टेड एट साइट। अब ये क्यूब कितने कास्ट करना भाई, कि क्यूब जो है वो हमने एक क्यूब कास्ट करके उसको टेस्ट करना कि क्या करना? तो इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड 516 ने बोला है कि जो नंबर ऑफ स्पेसिमन्स
यानी एक सेट जो होता है, जो वो कंक्रीट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कम से कम 3 क्यूब कास्ट करना चाहिए। आपके दिमाग में पक्का भर लीजिए ये, कि एक सेट जो रहता है जो कंक्रीट को रिप्रेजेंट करता है, उसमें हम कितने क्यूब कास्ट करते हैं? 3 क्यूब, या 3 सिलेंडर कास्ट करेंगे हम। So the average of these three specimens, the average compressive strength of these three specimens or 3 cube molds will represent the compressive strength of the concrete that has been casted at site. So therefore 3 specimens must be casted as has been told in Indian Standard 516. And generally these 3 cubes are to be casted from the 3 बैचेस। अब ये 3 बैचेस क्या है भाई? तो ये जो कंक्रीट हम साइट पे कास्ट कर रहे हैं, या साइट पे जो ढाल रहे हैं, साइट पे जो कंक्रीट हम प्लेस कर रहे हैं, तो ये एक मिक्सर से कंक्रीट बनाया, तो उससे एक मिक्सर का जो कंक्रीट है उससे ही 3 क्यूब मत बनाइए, ऐसा ऐसा वो इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है। वो क्या बोलता है? एक लोड जो है, एक बैच है, उससे 1 क्यूब कास्ट कीजिए, दूसरे बैच से दूसरा कीजिए, तीसरे बैच से तीसरा कीजिए। कहने का मतलब यही है कि तीनों क्यूब आपको वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ बताएगी, करेक्ट स्ट्रेंथ बताएगी। ठीक है, सो मुझे लगता है ये बेसिक चीजें अभी सब आपके ध्यान में आ गई है कि कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इसलिए की जाती है कि वो साइट पे जो हम कंक्रीट कास्ट करने वाले हैं, या साइट पे जो कंक्रीट कास्ट किया है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए हम ये कंक्रीट के क्यूब बनाते हैं, कास्ट करते हैं। वो क्यूब के डिटेल्स है 15 बाय 15 बाय 15 सेंटीमीटर क्यूब, या सिलेंडर भी कास्ट करते हैं। वो 15 सेंटीमीटर डायमीटर का सिलेंडर रहता है, 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है, या कभी 10 सेंटीमीटर डाया का भी रहता है, 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ रहती है। उसको 7 दिन के क्यूरिंग के बाद में या 28 दिन के क्यूरिंग के बाद में टेस्ट करते हैं। ठीक है, और एक सेट में 1 सेट ऑफ द कंक्रीट क्यूब और 1 सेट ऑफ द कंक्रीट मोल्ड्स, सिलिंड्रिकल मोल्ड, कंसिस्ट ऑफ 3 स्पेसिमेंस। एक सेट में 3 कंक्रीट के क्यूब या 3 सिलेंडर हम कास्ट करेंगे एक ही जगह के कंक्रीट से, 3 बैचेस से, 3 डिफरेंट बैचेस से। तो मुझे लगता है विद दिस मच बेसिक इंफॉर्मेशन वी विल मूव फॉरवर्ड। कंक्रीट क्यूब का हमने साइज देखा 15 बाय 15 बाय 15 सेंटीमीटर्स। मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट इफ इट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर्स, यानी इफ 20 MSA का कंक्रीट है, उससे कम है, यानी 10 MSA 5 MSA का कंक्रीट है, तो हम 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर के भी क्यूब कास्ट करते हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के क्यूब कब कास्ट करते हैं? कि इफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 20 mm or 2 centimeters. If the maximum size of aggregate in the concrete is less than 20 mm or 2 centimeters, then we can cast 10 centimeters by 10 centimeters by 10 centimeter size cube. ये यहाँ पे क्यूब मोल्ड बताए हैं, तो इसमें इसकी विड्थ जो है वो आइदर 15 सेंटीमीटर, यदि हम 15 बाय 15 बाय 15 का लेते हैं तो इट इज 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर एंड इज डेप्थ इज 15 सेंटीमीटर। ओके, if we take it by 10 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter, it is 10 by 10 by 10. okay, the cylinder, ये जो सिलेंडर है यहाँ बताया है सिलेंडर, ये इसका डायमीटर आइदर 15 सेंटीमीटर रहता है या 10 सेंटीमीटर का डाया रहता है। इसकी लेंथ जो रहती है वो लेंथ, यदि 15 सेंटीमीटर डाया है तो इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर रहती है, 10 सेंटीमीटर डाया है तो इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, ये जो बड़ा क्यूब दिख रहा है दिस इज ऑफ द 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर
by 15 centimeter. The small cube is of the size of 10 centimeter by 10 centimeter by 10 centimeter. एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे, इसको एस्पेक्ट रेशियो करके बोलते हैं. आपके नोटबुक में आप लिखते जाइए. व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो? Aspect ratio of the concrete mold or concrete cylinder or the concrete cube is the length divided by breadth. Okay, in case of the cylindrical cylinder, the aspect ratio is height divided by diameter. Okay, so for the cylinder, for the cubical mold or for the cubes, the aspect ratio is length divided by breadth. So length is 15 centimeter and its breadth is 15 centimeter. Therefore 15 divided by 15 is equal to 1. Okay. Now for the cylindrical specimen or cylindrical mold, the aspect ratio is height divided by diameter. I have just told you the height is 30 centimeter and diameter is 15 centimeter. Therefore its ratio is 2. 30 divided by 15. So 2. Also, for the 20 centimeters height and 10 centimeters dia, the aspect ratio is 2. I think you all must have got the meaning and concept of the aspect ratio. Okay, because as the aspect ratio increases, we will be seeing later on, as the aspect ratio increases, the compressive strength of the concrete sample, कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं कम होती, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कम होती है. क्यों होती है वो हम आगे में पढ़ेंगे उसके लिए. लेकिन मूल ओरिजिनल कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम होती है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो सिलेंडर है या ये जो क्यूब है, these are the representations of the concrete that has been casted at the site. Okay, so smaller test specimen shall have the ratio of diameter of specimen to maximum size of aggregate of not less than 3:1. कहने का मतलब ये है कि MSA से 3 times the dimensions of the either cube or of the cylinder must be 3 times larger than the maximum size of aggregate. यानी maximum size of aggregate यदि 20 MSA है तो 2 सेंटीमीटर उसका हो गया, उसका 3 टाइम्स यानी बेतरिक 6 सेंटीमीटर हो गया. तो हम 15 सेंटीमीटर का लेते हैं कम से कम, ये ध्यान में रखिए आप. लेकिन जनरली कंसेप्ट कैसा है कि आइदर डायमीटर और द साइज ऑफ द मोल्ड मस्ट बी 3 टाइम्स देन द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन द कंक्रीट. ओके, except that the diameter of the specimen shall not be less than 7.5 सेंटीमीटर. 7.5 सेंटीमीटर के साइज के मोल्ड से कम साइज का मोल्ड नहीं यूज करना चाहिए, ऐसा आप ध्यान में रखिए. हम जनरली 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का मोल्ड यूज करते हैं और 15 सेंटीमीटर डायमीटर और 30 सेंटीमीटर लेंथ या हाइट का सिलेंडर यूज करते हैं. अभी हम आगे में और जाते हैं. फिर से मैंने जैसे बताया इंडियन स्टैंडर्ड 516 1959 में क्या बताया गया है, हाउ टू टेस्ट द कंक्रीट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ. कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे टेस्ट किया जाए? तो पहले तो उन्होंने बताया कि इन नो केस द कंक्रीट बी सिलेक्टेड, द कंक्रीट टू बी सब्जेक्टेड शुड नॉट बी लेस देन 35 स्ट्रोक्स पर लेयर फॉर 15 क्यूब्स where the voids are left by tamping bar, the sides of the mold shall be compacted. फिर से ये बेसिक चीज आप ध्यान में रखिए, दिमाग में पक्की. ये जो कंक्रीट क्यूब जो है, मोल्ड जो है, जो मोल्ड ये लोहे के रहते हैं, ये जो मोल्ड बनाए जाते हैं ये लोहे के रहते हैं और इसमें कंक्रीट हम डालते हैं, वी पुट द कंक्रीट इन दिस मोल्ड फ्रॉम द साइड. तो ये जो कंक्रीट इसमें हम डालते हैं उसको 3 लेयर में डालना चाहिए. दिस कंक्रीट इज टू बी पुट इन 3 लेयर्स. ओके, इट्स वेरी लेट, स्टिल टुडे वी विल अलाउ. सो दिस कंक्रीट विच इज टू बी पुट इन दिस मोल्ड्स, ये मोल्ड में जो कंक्रीट हम
पुट करने वाले हैं, डालने वाले हैं, और उसको बाद में क्या करना है, इसको 3 लेयर में डालना है. इट इज टू बी फिल्ड इन 3 लेयर्स. ओके, इट इज टू बी फिल्ड इन 3 लेयर्स एंड ईच लेयर इज टू बी गिवन 35 स्ट्रोक. 3 लेयर में इसको कंक्रीट को भरना है ये मोल्ड में, और हर लेयर को 35 स्ट्रोक मारना है. क्यों करना है? क्योंकि ये अच्छा कॉम्पैक्शन हो इसका, इसमें के एयर वॉइड निकल जाए. और आपके पास में सरफेस वाइब्रेटर है तो उस पे भी रख दिया तो भी चलेगा ये, फिर तो और अच्छा वाइब्रेशन होगा. लेकिन नहीं है तो जो एक रॉड रहता है, स्टैंडर्ड जो रॉड रहता है कॉम्पैक्शन का, वो रॉड से इसको 35 बार ठोकना है आपको, और ये 3 लेयर में भरना है. कैसे भरना है 3 लेयर में, तो ये हम आगे में देखते हैं. एज हैज बीन शोन हियर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मोल्ड, दिस इज द मोल्ड. ये मोल्ड जैसे मैंने बोला, ये मोल्ड ये लोहे का रहता है और इसको नट बोल्ट से फिट कर सकते हैं. नीचे में एक बेस प्लेट रहती है और ऊपर के जो है वो 2 पार्ट में रहते हैं. ओके, और दिस 2 पार्ट्स आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द नट बोल्ट, एंड दिस होल cubical mold is attached to the base plate by the nut bolts, so nothing moves while we compact it. So concrete is filled in the mold in layers approximately 5 centimeters depth, है ना, 5 सेंटीमीटर डेप्थ का से कंक्रीट भरना है ये मोल्ड में. अब 15 सेंटीमीटर हाइट है तो 3 सेंटीमीटर 3 लेयर में होगा, और हर लेयर को 35 स्ट्रोक देना है, 35 स्ट्रोक पर लेयर. यदि 15 सेंटीमीटर का क्यूब है तो, और यदि 10 सेंटीमीटर का क्यूब है तो 25 स्ट्रोक देना है. सो एवरी लेयर इज टू बी गिवन 35 स्ट्रोक्स फॉर द 15 सेंटीमीटर्स क्यूब और 25 स्ट्रोक्स फॉर द 10 सेंटीमीटर्स क्यूब. ये यहाँ पे बताया है. और ये 35 स्ट्रोक कैसे मारना है इसको, तो पूरे इसके पेरी से मारना है, यानी पेरी में मारना है और बीच में. द बेसिक ओनली पर्पज इज दैट द कंक्रीट शुड बी कॉम्पैक्टेड वेरी फर्मली, वेरी परफेक्टली. ओके, फॉर सिलिंड्रिकल स्पेसिमेंस नंबर ऑफ स्ट्रोक शैल नॉट बी लेस देन 30 पर लेयर. सिलिंड्रिकल यदि स्पेसिमन है, सिलिंड्रिकल मोल्ड है, तो वो सिलिंड्रिकल मोल्ड भी लोहे का ही रहता है, तो उसके अंदर कंक्रीट हम डालते हैं तो उसको भी 30 स्ट्रोक से कम नहीं मारना, और हर लेयर ये 5 सेंटीमीटर की लेयर रहना चाहिए, तो वो सिलिंड्रिकल मोल्ड में तो और ज्यादा लेयर्स आएगी. ठीक है, तो ये जैसे आपको बताया गया है हाउ दी कंक्रीट इज टू बी कॉम्पैक्टेड इनटू दिस स्टील मोल्ड. इस हर कॉम्पैक्शन के बाद में, हर लेयर के कॉम्पैक्शन के बाद में ऊपर में थोड़ा ऐसा लस टाइप मटेरियल आना चाहिए जिसको लैटेंस करके बोलते हैं. ओके, सो एवरी लेयर इज टू बी कॉम्पैक्टेड प्रॉपरली, एंड दिस mortar should come at the top, the cement and the water paste, and this is the final layer. तीनों लेयर कॉम्पैक्ट करने के बाद में ऊपर में ऐसा दिखेगा. फिर हमारे पास में जो भी एक लेवलिंग प्लेट रहती है, जिसको हम हमारे हिंदी मराठी में कौचा वगैरह बोलते हैं, उससे इसको फ्लश करना है और प्लेन करना है. ठीक है, सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट एट लीस्ट 3 स्पेसिमन हमने लेना है, 3 लेना ही है, ये दिमाग में ठान लीजिए. 3 क्यूब कास्ट करना है, नहीं तो 3 सिलेंडर कास्ट करना है हर सेट में. एवरी सेट ऑफ द कंक्रीट टू बी टेस्टेड, द वर्ड आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, every set of the concrete cubes tested or concrete cylinders tested must have at least 3 specimens, must have at least 3 cube molds or 3 cylinders. Okay, so that it will represent the concrete which we needs to be tested. This we have seen the sizes of this thing. Okay, now sometimes ये cylindrical mold है. ये सिलिंड्रिकल मोल्ड का जो ऊपर का रहता है जब फिनिश होने के बाद में, या इसको जब हम निकालते हैं सेट होने के बाद में, तो इसका टॉप और बॉटम सरफेस ये एकदम स्मूथ नहीं रहता. इट डज नॉट रिमेन स्मूथ टू टेस्ट दिस इन द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन. तो हम क्या करते हैं इसको कि उसके ऊपर में और नीचे में बाद में कैपिंग करते हैं. ये कैपिंग इसलिए करते हैं ताकि जो लोड हम अप्लाई करने वाले हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो,
ठीक है। तो ये कैपिंग हम जो करते हैं, ये एक तो पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट जो बनाते हैं उससे करते हैं, या मिक्सचर ऑफ द सल्फर एंड द ग्रैन्युलर मटेरियल, इसके मिक्सचर से इसको ऊपर में कैप लगाते हैं, या हाई स्ट्रेंथ जिप्सम प्लास्टर, जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट, उससे हम इसके ऊपर में प्लास्टरिंग जैसा करते हैं। ओनली दैट वी शुड गेट ए प्लेन सरफेस एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेड नीड्स टू बी अप्लाइड with the help of the under the compression testing machine. Okay, the cylinders are casted. How these casted and tested, that will be discussing in the next slide. The cube strength is approximately 1.25 times the cylinder strength. Okay, why, that we will be discussing later on. एक ही कंक्रीट है, कंक्रीट इज फ्रॉम द सेम सोर्स, कंक्रीट इज फ्रॉम द सेम साइट, उसको मैं हिंदी में बोलूंगा कि एक ही कंक्रीट है, एक ही जगह का, एक ही समय का कंक्रीट है, और उसके यदि हमने क्यूब कास्ट किए और उसके सिलेंडर भी कास्ट किए, उसके हम कितने क्यूब कास्ट करेंगे? हम कम से कम 3 क्यूब कास्ट करेंगे, यदि हमें 28 डेज स्ट्रेंथ निकालना है तो। यदि 7 डेज भी निकालना है तो हम 6 क्यूब कास्ट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है 7 डेज टेस्ट करना है तो कम से कम 3 क्यूब लगेंगे, 28 डेज टेस्ट करना है तो फिर से 3 क्यूब लगेंगे, तो 7 डेज के लिए 3, 28 डेज के लिए 3, ठीक है। और सिलेंडर भी कास्ट करना है तो 7 डेज टेस्ट यदि हमें करना है तो 3 सिलेंडर कास्ट करेंगे, और 28 डेज करना है तो 3 सिलेंडर कास्ट करेंगे। अभी एक ही कंक्रीट के हमने क्यूब कास्ट किए और उसके सिलेंडर भी कास्ट किए और दोनों की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला, तो हमें ऐसा पाया गया कि क्यूब स्ट्रेंथ जो है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ से 1.25 टाइम्स ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है वो हम आगे में देखेंगे, लेकिन आप ये पक्का ध्यान में रखिए कि क्यूब स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 1.25 times more than the cylindrical strength, okay, of the same concrete which has been casted from the same site, from the same location, from the same source at the same time। यानी आज सुबह, जैसे आज की तारीख है 21 तारीख है, 21 तारीख को सुबह 11 बजे यदि कहीं एक आधे साइट पे कंक्रीट चल रहा है और हम सब लोग वहां पे खड़े हैं, कंक्रीटिंग करवा रहे हैं, और वहां पे हमें अभी बोला गया है कि चलो अभी कंक्रीट के क्यूब कास्ट करो और सिलेंडर भी कास्ट करो, तो हम उसी कंक्रीट के क्यूब भी कास्ट करेंगे 3, 28 दिन के लिए करना है तो, और 3 सिलेंडर भी कास्ट करेंगे। और दोनों को यदि 28 दिन के बाद में हम टेस्ट करते हैं, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो हमें ऐसा देखा जाता है कि क्यूब स्ट्रेंथ जो है ये 1.25 टाइम्स सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ है। भले ही कंक्रीट एक ही है, तो इसका मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ नहीं कम ज्यादा है, स्ट्रेंथ तो एक ही है, लेकिन क्यूब से टेस्ट करने के बाद में सिलेंडर से वो 1.25 टाइम्स ज्यादा आती है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि फिर से मैं दोहराता हूं कि 516 जो है वो क्या बोलता है, एटलीस्ट 3 स्पेसिमेंस मस्ट बी कास्टेड एंड प्रिफरेबली फ्रॉम द डिफरेंट बैचेस, ठीक है। वो भी मुझे मैंने आपको समझा के दिया है, शैल बी मेड फॉर टेस्टिंग एट ईच सिलेक्टेड हेड। ये जो मैंने इक्विपमेंट है ये आपको बता रहा हूं यहाँ पे स्लाइड में, ये हमारे कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन करके बोलते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एज ए CTM in short form, it is called as a CTM and its long form is compression testing machine, ठीक है। ये compression testing machine हमारे कॉलेज के लैब में है और अच्छी क्वालिटी का है, हम जब जाएंगे तब हम वहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, हमारे सामने करवा लेंगे। तो ये compression testing मशीन में ये ऐसा क्यूब रखा जाता है, इसके 2 फेसेस रहते हैं, 2 जॉज बोलेंगे हम। Between these 2 jaws, this cube is put or the cylinder is put। कैसे रखते हैं वो हम आगे में देखेंगे। तो ऐसा रखा जाता है either cube or the cylinder। इसका नीचे का जो जॉ रहता है वो फिक्स रहता है, इसका नीचे का जॉ फिक्स रहता है, और ऊपर का जॉ है ये इसको दबाने का काम करता है। ऊपर का जॉ बोलो या ये प्लेट बोलो, ओके। 2 plates are there, one plate is at the top and the bottom plate is also there,
The top plate is fixed. The top plate is fixed. I told you. I will again repeat. The top plate is fixed and the bottom plate moves upwards. इसकी जो ऊपर की प्लेट है ये फिक्स रहती है और बॉटम प्लेट ऊपर में जाती है, इसको दबाती है. ठीक है, वो हाइड्रोलिक प्रेशर से होता है वो ये काम. जब ये इसको दबाती है, ये क्यूब को दबाती है, तो ये क्यूब के ऊपर में कॉम्प्रेसिव लोड आ जाता है. और वो जो भी लोड अप्लाई होता है वो इसको दो मीटर्स रहते हैं. आइदर दे आर द एनालिटिकल मीटर्स और द डिजिटल मीटर. इसको दो मीटर्स लगे हुए रहते हैं और वो मीटर में हमें कितना लोड अप्लाई हो रहा है वो ये मीटर में हमें पता चलता है. ठीक है, सो द लोड शैल बी अप्लाइड विदाउट शॉक. ये लोड कैसा अप्लाई करते हैं हम? वी अप्लाई द लोड विदाउट शॉक. कोई जोर का धक्का नहीं लगाते हम इसको. एंड इट इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली. दिस लोड इज इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली at a rate of approximately 140 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये फिगर परमानेंट ध्यान में रखिए कि द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड हाइड्रोलिकली. यहाँ पे एक कॉम्प्रेसर रहता है अंदर में. ये कॉम्प्रेसर से द ऑयल इज पंप्ड थ्रू दिस पाइप एंड ड्यू टू द पंपिंग ऑफ दिस ऑयल, compression of this oil, this bottom plate gets lifted under pressure, and whatever pressure that is being applied through this plate is being measured in this calibrated digital or the analytical meter. और ये मीटर में हमें लोड कितना अप्लाई हो रहा है वो लोड पता चलता है. वो लोड कैसा रहना चाहिए? वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, बिना शॉक का रहना चाहिए, और उसका रेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लोड must not be greater than, or it must be 140 kg per square centimeter per minute. This should be the load applied until the resistance of the specimen to the increasing load breaks down and no greater load can be sustained. Means क्या होता है? After the load is being applied, this cube gets compressed. Now we are increasing the load. The equipment is in now operational mode. It increases the load, and at some load this cube gets cracked, this cube gets failed. At that load the equipment automatically stops. उस समय में ये इक्विपमेंट अपने आप बंद हो जाता है और ये मीटर जो है, ये मीटर में हमें वो फेल जो क्रैक हुई है, at that crack or at that failure what was the load, कितना न्यूटन या कितना किलोग्राम का लोड है, ये मीटर में हमें पता चलता है. ठीक है, सो आई थिंक यू हैव. और ये जो लोड हमें मीटर से पता चलता है, ये लोड को यदि हमने इसके सरफेस एरिया से डिवाइड किया, जैसे 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का क्यूब है, यदि हम उसके सरफेस एरिया से उसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फिर इसकी compressive strength, because we know that the strength or the stress is the load per unit area or force per unit area. So we get the force either in Newton or in kilogram in this meter. Okay, and in this meter, after getting the load at the failure, that is when the cube breaks down or the cracks are developed in the cube. Okay, so no greater load can be sustained. So no more load now this cube will sustain because it cracks. At that juncture, the equipment automatically stops and the meter also stops. Meter also stops recording the reading, and that maximum load at the failure, that value, if we divide by the surface area of the cube or by the surface area of the cylinder, यदि 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का क्यूब है, the surface area will be 15 multiplied by 15 centimeter square or 0.15 by 0.15 meter square. Okay, if the cylinder is there, then its diameter is 15 centimeters. Then naturally its cross sectional or the top surface area will be pi d square by 4.
So pi into diameter is 15. So 15 square by 4 will be its surface area. Okay. So by dividing the total load with the surface area, we will get the compressive strength of the concrete or compressive strength of this cube. Okay, and this cube represents the concrete that has been casted at the site. So therefore we can say this, the compressive strength of this cube is nothing but the compressive strength of the concrete that has been casted at site. ऐसे कितने क्यूब हम कास्ट करते हैं? ऐसे 3 क्यूब हम कास्ट करते हैं, because we the Indian standard says that the number of specimen minimum should be 3. 3 क्यूब तो हमको कास्ट करना ही है, कि क्योंकि तीनों के ऐसे हमने कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के बाद में जो एवरेज हम करेंगे तीनों की, तो हमें एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंक्रीट वी विल गेट आइदर विद द हेल्प ऑफ द क्यूब और विद द हेल्प ऑफ द सिलेंडर. ओके, द हाउ द क्यूब्स आर क्रश्ड, ये ऐसा इन दिस वे दे आर क्रश्ड at the two surfaces, at the two faces, almost each faces remains intact, but at the center there is a lot of failure. Also for the cylinder also, if we find the same type of the failure that we get at for the cylinders also. Now these are the cylinders, the top and the bottom cap I have told you, either of the gypsum or of the cement and the water paste or of the sulfur paste. Only these caps are put to apply the uniformly distributed load by the compression testing machine at top and bottom surface. नहीं तो कभी कभी नियोप्रीन पैड भी यहाँ पे लगाते हैं, ये फेस के दोनों के बीच में. ठीक है. So these are the types of the failures. The remaining part of this discussion we will be doing in our next lecture. Okay, how we have learned earlier the failure mode of the concrete. Earlier we have discussed how the concrete fails. Okay, the concrete fails due to shear resistance and the compressive resistance of the aggregate as well as the cement and water paste in compression. In tension, it fails due to the already existing cracks, but that is discussed earlier. We will see in our next lecture how this failure takes place. Okay, I think you have understood till now. Don't leave the class. Okay, because today there is a your parents meet, so we will be taking the break here. Please don't leave the class. Just wait.